So when we talk about IELTS listening, so this is one of those modules that can really boost your score. So there are some modules that can really increase or that can really help you to achieve your band score. One of those is actually IELTS listening. Okay, so when you talk about IELTS listening, you must keep some specific things in your mind. Okay, so first of all we would try to discuss this exam content. ठीक है, एग्जाम से रेलिवेंट हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द पेपर पैटर्न. ठीक है, so keep one thing in mind that this is the same test for all. What do we mean by the same test? As you know that different type of people they are attempting IELTS. ठीक है, including some are going for IELTS academic and some are going for IELTS general training. As you know that those who are going for studies, they would go for IELTS academic, while other are actually included, they would attempt general training. So keep one thing in mind that the question paper is exactly the same, but obviously the band score, the requirement is not the same. ठीक है, इसी तरह से उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस बहरहाल मौजूद है. इसके बाद है सेम क्वेश्चंस, सेम फॉर्मेट एंड सेम स्कोरिंग. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा, जो भी आप एकेडमिक कर रहे हैं, जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं. अगर आपने आइट्स करना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिए और आपका फ्यूचर प्लान क्या है. ठीक है, नाउ सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट, जो आइट्स लिसनिंग का फॉर्मेट है, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर आएगा. इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस. हाउ मेनी सेक्शंस? 4 sections. Okay, so let's discuss in detail. The section 1 is generally considered the easiest. तो आम तौर पर difficulty level increases with the questions. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये difficulty level increase करता रहता है. ठीक है, तो sections पे जाने से पहले जो basic information है वो हमें clear होनी चाहिए. वो क्या है? How many questions you would be asked? 40 questions. Okay, and what is the test duration? तो टेस्ट ड्यूरेशन में आपने ये याद रखना है 40 मिनट्स हुआ करते थे जब आइट्स ऑन पेपर अवेलेबल था. अब ऐसा नहीं है. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की बेटे ऑडियो होती है और उसके बाद आपको ऑनलाइन जो आइट्स ऑन कंप्यूटर है उस पर 2 मिनट्स मिलते हैं कि अपने आंसर को देख लें. तो टोटल आपका लिसनिंग का जो असल में ड्यूरेशन है ना, वो अब कितना रह गया है? ओनली 32 मिनट्स. ठीक है, 40 मिनट्स नहीं है. पहले ऐसे होता था 30 मिनट की ऑडियो चलती थी, एंड वाले 10 मिनट्स में यू हैड टू ट्रांसफर द क्वेश्चन टू द आंसर शीट. ठीक है, तो उसमें वो होता. तो अब इसकी बेटे जरूरत नहीं है. लेट्स गो बैक टू द सेक्शन. पहला भाई सबसे आसान सेक्शन है. तो अब हमें लिसनिंग के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए कि सेक्शन 1 में क्या क्या चीजें आएंगी. ठीक है, तो इसमें बेटा आपने क्या याद रखना है कि एक जो IELTS listening paper है ना, it's actually multitasking. You are doing multitasking at a single frame of time. ठीक है, for example, number 1, you would read the question, you are using your eyes. You would listen to the audio, you would use your ears. ठीक है, you would use your mind to understand the question and predict the answer. So you are doing a lot of things over there. Okay. So social situation, जो सेक्शन 1 है, हम कह रहे हैं कि ये मल्टीटास्किंग है. मल्टीटास्किंग में क्या है कि एक ही वक्त में बेटे आपने ऑडियो सुननी है, क्वेश्चन पे भी नजर रखनी है, दिमाग में सोचना भी है, एंड देन योर हैंड्स, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर एज वेल. सो 4 थिंग्स यू आर डूइंग एट अ टाइम. लिसनिंग विद योर ईयर्स, looking at the question with your eyes, predicting the answer, understanding the answer with your mind, and typing with your hands. So it's a multitasking. I think all of you are very familiar with multitasking. Suppose generally if you are a male, many people who ride a bike or drive, so they are talking on the phone as well. They know where they are going. They are doing a lot of things. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, उन्हें यह भी पता है, उन्हें यह भी पता है कौन सा गियर चल रहा है, उन्हें यह भी पता है क्या रेस है, और वो फोन पे भी बात कर रहे हैं किधर को मुड़ना है, घर किधर है. 7-7 8-8 काम जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से घर में आप, इफ यू टॉक अबाउट योर मॉम्स
or about the female. So when they are cooking, they are also sometimes they are washing clothes as well, sometimes they are doing dusting as well. वो 5-5 7-7 चीजें हम इकट्ठे करते हुए रहते हैं, ठीक है. So listening is actually not a new thing. It's a multitasking, we can easily do that. इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. अच्छा जी, अब देखें पहली बात, सेक्शन 1 में पहली सिचुएशन क्या है? सोशल सिचुएशन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अमूमन क्या होता है कि आप अगर किसी होटल में बुकिंग करवानी है तो ये भी एक सोशल सिचुएशन है. आपने टीसीएस कोरियर करवाना है, अपना नाम वगैरह बताएंगे, वो आपसे नाम वगैरह पूछेंगे, ये भी एक क्या है? सोशल सिचुएशन है. इवन कोई क्राइम रिपोर्ट लिखवानी है पुलिस स्टेशन जाकर, ये भी एक सोशल सिचुएशन है. तो आम जिंदगी में से, सिंपल इसका मतलब क्या है? आम जिंदगी में से. अब बेटा जो ऑडियो चलेगी आपने क्या याद रखना है? नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑडियो वुड बी प्लेड वंस. जो लिसनिंग है इसमें यू डोंट हैव अ रिमोट कंट्रोल कि जरा पीछे करें की क्या सीन है, तो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है. सो यू वुड बी गिवन हेडफोन्स, दे वुड गिव यू अ लॉट ऑफ चांसेस टू चेक योर हेडफोन्स, ठीक है. वंस द ऑडियो स्टार्ट्स, once your paper starts, you cannot stop the audio और you cannot forward the audio, you cannot reverse the audio, ठीक है. तो आपने ये बात जहन में रखनी है, ठीक है. अब ऑडियो सुन के सवालों को देखकर हमने उनके जवाबात देने की कोशिश करनी है, ठीक है. आपको बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो आएंगे, उसके हिसाब से आप देखना. फॉर एग्जांपल ये बेटे लिसनिंग का पेपर है आपके सामने. ये पहला पार्ट है इजी लाइफ क्लीनिंग सर्विसेज. तो कहीं पे सर्विसेज की बात हो रही, ये सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो बेसिक क्लीनिंग पैकेज ऑफर जो वो ऑफर कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है. क्लीनिंग ऑल सर्विसेज, क्लीनिंग द डैश थ्रू आउट द अपार्टमेंट. अब आपने ऑडियो सुन के क्या तलाश करना है भाई कि यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है. इसी तरह से आप दूसरा सवाल देखें, वो क्या है कि एवरी वीक क्लीनिंग द डैश. ऑडियो सुनेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है. इस तरह नंबर 3 पे क्या आएगा? ये भी हम ऑडियो सुनेंगे तो बेटे फिर उसके साथ हमें ये चीजें क्या होंगी? क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो इसी के हिसाब से हमने इसको डील करने की कोशिश करनी है कि जब आप इसको अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट करेंगे तो एहतियात के साथ हम उसको लिखना भी है, टाइप भी करना है. एंड वाले 2 मिनट में आप उसके स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है. दूसरी अहम बात है बेटे, देखें इसमें कितने लोग बोलेंगे आपस में? 2 स्पीकर्स. तो आम 2 बंदे जब बात कर रहे हैं तो कोई हो सकता है एक इंफॉर्मेशन ले रहा है, दूसरा बंदा इंफॉर्मेशन उसको बता रहा है, ठीक है. इसके बाद टिपिकल एग्जांपल क्या होगी? फोन कन्वर्सेशन. तो अक्सर ऐसे क्या होता है कि आप टेलीफोन कॉल वाले, ये भी पेपर्स में आता रहा है, ठीक है. और यहां पे आपने क्या करना है? खाली जगह में लिखनी क्या होती है? स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ऑडियो में जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ना, एग्जैक्टली आपने एन वही वर्ड यूज करना है. अपनी तरफ से उस वर्ड को हम चेंज नहीं. मसलन वहां पे दे टॉक का लफ्ज आ रहा है तो आप डिस्कस नहीं यहां पे लगा सकते. अगर उन्होंने टॉक कहा है तो आपने टॉक ही लिखना. हाँ, बाज़ औक़ात सिंगुलर प्लूरल ये चेंज हो सकता है, या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या ऐसा इतनी को हो सकती है चेंजेस, बट अदरवाइज जो मेन उन्होंने बेटे यूज किया आपको वही यूज करना पड़ेगा. तो सेक्शन 1 क्या था भाई? सबसे आसान. तो जिन लोगों ने आर्ट्स जनरल करना है, जिनको 4 4.5 बैंड चाहिए, उन्होंने ये कोशिश करनी है कि इन सेक्शन 1 यू मस्ट स्कोर 10 आउट ऑफ 10 और एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10, ठीक है. कि यानी इसमें आपका स्कोर क्या होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो. सेक्शन 2 बेटा क्या है? ये भी ये इजी है उसकी निस्बत. इसमें भी सिचुएशन सेम है और आगे क्या है? वन स्पीकर. तो एक बंदा ही बोलता है लेक्चर की तरह. इसको मोनोलॉग भी कहते हैं. एक वक्त में जो एक बंदा बात कर रहा होता है, ठीक है. इसकी टिपिकल एग्जांपल क्या हो सकती है? टूर गाइड. तो आप कहीं पे गए हैं तो आपको जो गाइड कर रहा है, जो बंदा समझा रहा है, वो एक किस्म का आपको क्या दे रहा है? लेक्चर दे रहा है, ठीक है. जैसे मैं आपको आइट्स के हवाले से कोई चीज़ें या लिसनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इस टाइम हमारा क्या चल रहा है? बेसिकली मोनोलॉग, कि एक बंदा क्या कर रहा है? बात कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन रिजॉर्ट, बिल्डिंग, चैरिटी. तो आप कोई इलाका हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या कोई अदारा हो सकता है जिसको वो आम तौर पर एक्सप्लेन करते हैं. होगा क्या? आम जिंदगी से रेलिवेंट ही है कोई, यानी कोई खास साइंसी ऐसा सिचुएशन नहीं है जो हर कॉमन बंदे की जिंदगी में आ सकता है.
अगेन मैं कहूँगा जिन्होंने आइट्स जनरल ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, जिनको सिर्फ 4.5 बैंड चाहिए, उनके लिए बेस्ट मौका ये है कि वो इसमें से भी कोशिश करें कि 10 में से 7-8 उनके ठीक हो जाए। यानी उनको जनरली अगर आप 4-5 बैंड की आप बात करें ना, तो 17 अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आपका स्कोर मीट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि ये जो 17 का टारगेट है ना, पहले 2 में से ही हासिल कर लें, क्योंकि आगे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसमें क्या है, मुश्किलात। जैसा कि आप देखें सेक्शन 3 जनरली क्या होता है, चैलेंजिंग। अब यहां पे ये बात याद रहे बेटे, एवरीथिंग इज रिलेटिव। हर किसी को अपने अपने हिसाब से मुश्किल या आसान लग सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके लोग, मुझे तो पहला सबसे मुश्किल लगा है, मुझे तो तीसरा ही बड़ा आसान लगा है। एक्चुअली जो चीज़ हमें आती है वो क्या लगती है, आसान लगती है। जो चीज़ नहीं आती वो हमें क्या लगती है, मुश्किल। वो कह रहे स्टैंडर्ड वाइज अगर देखा जाए तो ये डिफिकल्टी लेवल है। बाकी तो हर किसी की पर्सनल फीलिंग है। जैसे हर पेपर के बाद होता है, एक बच्चा कहेगा कि आसान आ गया पेपर, दूसरा कहेगा मुश्किल आ गया। फर्स्ट टाइम वाले कहेंगे सेकंड टाइम वालों का आसान आया, सेकंड टाइम वाले कहेंगे फर्स्ट वालों का आसान आया। जो फर्स्ट वाले कहेंगे मेरा अगर सेकंड टाइम होता ना तो मेरे इतने नंबर आ जाने थे, सेकंड टाइम वाले कहेंगे मेरा फर्स्ट टाइम होता तो इतने नंबर आए। तो बहरहाल ये सारी चीजें चलती रहती है। सेक्शन 3 बहरहाल बेटा उनकी निस्बत क्या है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। देखते हैं भाई इसमें क्या चैलेंजिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज है एकेडमिक डिस्कशन। They can talk about an assignment or a project that was given by the professor to the students. तो अब अगर कोई किसी बंदे ने अभी कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, या कभी उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, कभी उसने कोई रिसर्च नहीं की, उसके लिए इनकी बातों को समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मसलन उसमें अगर वो बातें करता है, रिसर्च क्वेश्चंस ये थे, उसकी असेसमेंट इस तरह से की गई, ये टारगेट उसको असाइन किया गया, उसके इतने बैंड स्कोर होने थे, फलां होने थे, तो हो सकता है उसे इतनी बातों की समझ ना आए। एक मसला तो ये आ गया। दूसरा, द बिगेस्ट इशू वुड बी दिस वन। व्हाट इज इट? 3 to 4 स्पीकर्स। देखें पहले में तो 2 बंदे बात कर रहे थे, पहचानना थोड़ा आसान था। दूसरे में अमूमन एक बंदा बात करता है, तीसरे में 3-3, 4, मसलन 4 स्टूडेंट है आपस में असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बंदा एक बात कहता है, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। अगर वो आपसे एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको इतना कुछ दिमाग में रखकर उसको पहचानना, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, इट्स नॉट इजी। तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, आइडेंटिफाई स्पीकर्स। जो बंदे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियो के बाद जो पेपर है उसमें तो सवाल होगा कि फलां बंदे ने ये बात क्यों, कौन से किसने की थी। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि ऑडियो के अंदर कौन से 3-4 लोग शामिल हैं, तो गौर से उनकी बात सुननी है, फिर उसी हिसाब से उसको बेटा टैकल करने की कोशिश करनी है। सो नेवरदलेस इट्स चैलेंजिंग वन। नाउ देन जनरली इट्स द 4th part that is considered to be difficult because it's a total academic lecture. Academic lecture जो है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, यू ऑल आर सपोज टू प्रिपेयर योर साइनॉप्सिस, योर साइनॉप्सिस डेट इज ब्ला 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 थिंग्स, यू आर गिवन दैट स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, यू हैव टू रिव्यू द लिटरेचर, यू हैव टू डू दिस डिस्कशन, यू हैव टू डू रिकमेंडेशन, यू हैव टू डू कंक्लूजन, फलां फलां फलां। अब इसमें आधी बात समझ आ रही है, हो सकता है आधी बात समझ ना, यानी जिसने रिसर्च की नहीं है उसके लिए तो अजाब हो जाएगा ना कि पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है। तो जनरली इसकी नेचर आम जिंदगी से हटकर है, वो क्या है, एकेडमिक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका कोई ठीक ही नहीं हो सकता। जो जनरल वाले, आपका मैंने पहले क्या बताया, दिस इज योर स्कोर बूस्टर, योर बैंड बूस्टर। इसमें से 40 आउट ऑफ जो 40 है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस अगेन 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 अगेन। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, वो देखना पड़ता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, और दूसरा कैन यू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट और नॉट। ऑडियो में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, एक्सेंट, कि वो जो बात कह रहे हैं वो बात भी आपको बेटा समझ लग रही है या वो बात आपको समझ नहीं लग रही। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इसके डिफरेंट सेक्शन है बेटे, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखेंगे तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग इसको, अब मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर देखते हैं कि किस हद तक आपको इसकी समझ लगी है या नहीं लगी। ठीक है।